Good evening, everybody. Today's topic is spectrum of light, and this topic is very interesting topic, and this is the topic of chemistry in which study in optics, that is the chapter of light, and this topic we also study in physics, in optics, and also in class 12 modern physics. But I will focus on the syllabus of class 11 chemistry, atomic structure. So spectrum of light, we see that and we know that the sun emits rays, and that rays waves, that have many types of waves are there: ultraviolet rays, infrared rays, radio waves, and gamma rays, and visible rays. Visible rays are those rays that we can see, that we see the reflection of visible rays. Other rays we cannot see. So the visible rays also, there are two types. One is white type and one is color. White is the ray that consists of many colors. So in order to understand the spectrum of light, we use the white light, and this white light is passed through a prism. So this is the shape of prism. You can say that this is triangle, this is triangular shape, but no, triangle is two-dimensional shape, whereas prism is three-dimensional. You can see in the laboratory that prism is three-dimensional, but the front view looks like that, this triangle, and on the whiteboard we cannot draw the three-dimensional structure, so we have to draw this two-dimensional like triangle. So this is prism. So when white light passes through a prism, this light gets, after passing through the prism, this light is broken into, and this light is emerged that many color lights are there. That is, the 7 color lights are obtained, and this light we see this light rays on a screen. On a screen we see the light ray, that is the 7 colors. So that is called visual. That is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So this is visual. So this we get on this screen the 7 colors of light. That is, after white light, this fall on the prism, and after that this comes out the 7 colors of light. So all these are colored lights. So 7 colors. So here is the incident rays, the white light, whereas after the rays come out of the prism, that we get the 7 colors. Now you see these 7 colors, that is visual, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So now you see the deflection of this light, how this light is deflected. So this first is red light, and this you see that when this is the imaginary line, this is the light rays, and this is the after refraction, this comes outside, this giving the visual, the 7 colors. But this is the imaginary line. We draw the imaginary line, and we see that this red color is this angle between this imaginary line and this. अगर ये लाइट यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये लाइट अगर सीधे चला जाता, तो ये इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन से और ये रेड रे के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल हम देखेंगे कि ये एंगल और अदर रेस का, जैसे रेड के बाद ये ऑरेंज है, येलो है,
ग्रीन है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये एंगल बड़ा होते चला जा रहा है। दिस एंगल बिकम्स ग्रेटर। सो दिस इन केस ऑफ रेड दिस एंगल इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इन दिस केस ऑफ वायलेट दिस एंगल इज लार्जेस्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिनल पाथ से इसका डिफ्लेक्शन डेविएशन रेड के केस में सबसे कम होता है और वायलेट के केस में सबसे ज्यादा होता है। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द रेड का ये जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होता है और इसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है और ये ग्रेजुअली ये डिक्रीज करता है, ये वेवलेंथ डिक्रीज करता है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज करता है। यू सी दैट दिस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब वायलेट का जो लैम्डा होगा, जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा और रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। ठीक उसके उल्टा, जस्ट अपोजिट टू दैट, वायलेट का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, रेड का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारा ये वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये रेड के केस में वेवलेंथ लैम्डा वो मैक्सिमम है और ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, जबकि वायलेट के केस में ये वेवलेंथ मिनिमम है और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इसलिए वायलेट में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन डेविएशन होता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और इसका वेवलेंथ मिनिमम है और रेड के केस में इसका डेविएशन डिफ्लेक्शन ये जो है मिनिमम होता है, सबसे कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है और इसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है रेड का दैट इज 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज और ये वायलेट के केस में 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये इसी के बीच में इसका वेरिएशन है। ये दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। रेड हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड वायलेट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नाउ यू सी दैट ऑल द रेज आर फॉलिंग इन दिस स्क्रीन। ये स्क्रीन है, इसी पर हमारा सारा रेज जो है फॉल कर रहा है और इस स्क्रीन पर हम स्टडी करते हैं, इस स्क्रीन को हम स्टडी करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये हमारा सारा जो कलर बैंड होता है ये बैंड ऑप्टेन होता है। दिस इज द बैंड, सेवरल बैंड्स ऑफ द कलर्स। दिस इज द बैंड ऑफ वायलेट, इज द बैंड ऑफ इंडिगो, दिस इज द बैंड ऑफ ब्लू, बैंड ऑफ ग्रीन, बैंड ऑफ ऑरेंज, बैंड ऑफ बैंड ऑफ येलो, बैंड ऑफ ऑरेंज एंड बैंड ऑफ रेड। तो इस तरह से ये 7 कलर्स का बैंड ऑब्टेन होता है। लेकिन ये बैंड, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो बैंड ऑब्टेन हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म के बाद जो लाइट रेज जो 7 कलर्स में जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको एक स्क्रीन पर हम लेते हैं और ये जो कलर बैंड ऑब्टेन होता है इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम को स्टडी हम करेंगे। इस स्पेक्ट्रम का स्टडी हायर क्लासेस में, बीएससी लेवल में इसका स्टडी किया जाता है। दैट इज स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। एक अलग वो है, ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब ये कहते हैं कि ये कलर बैंड जो ऑब्टेन हुआ है, ये कलर बैंड ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग डिफरेंट है, कलर बैंड अलग अलग बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। एक कलर दूसरे कलर में मर्ज करता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफाई कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक वायलेट है और यहाँ से यहाँ तक इंडिगो है और यहाँ से यहाँ तक ब्लू है। वायलेट मर्ज कर जाता है इंडिगो में, इंडिगो मर्ज कर जाता है ब्लू में, ब्लू मर्ज कर जाता है ग्रीन में, ग्रीन मर्ज कर जाता है येलो में, येलो मर्ज कर जाता है ऑरेंज में, ऑरेंज मर्ज कर जाता है रेड में। तो हर कलर एक दूसरे कलर में मर्ज करता हुआ चला जाता है। इसीलिए इस टाइप का स्पेक्ट्रम जो फॉर्मेशन हुआ है, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
तो इस तरह से हमने देखा कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट और किस तरह से लाइट के स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का हमने अभी स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका सेपरेशन कहीं नहीं है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होते हुए चला आया है, इसलिए दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ spectrum is called continuous spectrum. So this is all about the spectrum of light. Next class we will study the discontinuous spectrum. So thank you. That's all.